हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਨ ਐਕੁਆਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੋਟੋਨ ਵਾਲੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਦੀ ਮੈਂਗਰੋਵ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦੀ ਐਸਚੁਰੀਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਟਰਮ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਵੈਟ लैंड, ਉਹ लैंड ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਹੈ ਇਜ਼ ਆ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਲੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਲੇਕ ਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ one thing that you need to understand regarding what is wetland is ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਵੈਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਵੈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ at certain points, it may not be covered with water, but land should be wet। कि water table ਜਿਹੜਾ ਹੈ saturated land ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ soil ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, water table should be very very near to the ground। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ land ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, but the ground water table is very near to the surface, so the entire land is wet। So this such a landscape is a wetland landscape। Even अपनी rice field, paddy field, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ flooding of the fields ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ point of time ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ field flooded with water ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ paddy field that is flooded with water, it is also an example of wetland going by the generic definition। ਹੁਣ ਉਹ wetland ਸਰਕਾਰ ਨੇ as a wetland recognize ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ recognize ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। But going by the definition of the term, even a transplanted paddy field is an example of wetland। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਹੈ ਇਜ਼ ਆ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੋਟੋਨ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਦੀ ਐਕੁਆਟਿਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਇਕੋਟੋਨ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਰੀਜਨ, ਤੇ ਵੈਟਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੈਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਐਨੀਮਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਰੀਜਨਸ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਲੈਂਡਸ transitional between terrestrial and aquatic ecosystems where water table is usually at or near the surface, or the land is covered by shallow water, not the deep water। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ point of distinction ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ with respect to lakes। Lakes may be shallow or they may be deep also, लेकिन wetland ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ land wet ਹੀ ਹੈ। shallow water ਹੋਊਗਾ in case water ਹੋਊਗਾ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 50-60 ਮੀਟਰ ਡੀਪ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰ। ਐਂਡ ਦੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ, ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਬਾਏ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਵਾਟਰ। that is ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਮੇ ਬੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕ੍ਰੌਪਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਰਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਟਸ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡ। ਤਰਾਈ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਰਾਈ, ਖਾਦਰ, ਬਾਂਗਰ, ਭਾਬਰ। ਤਰਾਈ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿੱਥੇ ਇਮਰਜੈਂਸ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡ। तो wetlands can be man-made or artificial। For example, mangroves, lake littorals, lakes they मतलब not the lake per se, lake littorals, adjoining area of the lake, जिथे कदे कदे पानी चला जाता है, जिथे water table very near to the surface है। flood plains या फिर other marshy and swampy areas। These are some of the examples of wetlands। Why they are considered wetlands? Because they experience periodic flooding। कदे ना कदे पानी like पूरा completely cover कर लेंदा है या water table बिल्कुल top ते आ जाता है, तो water becomes the primary factor that regulates the flora and fauna over there, ecosystem over there।
ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੋਇਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਇਡ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲੈਂਕ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਇਲ ਹੀ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਐਨऑक्सिक ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਟਰਲੌਗਡ ਸੋਇਲ, ਅਡੈਪਟਡ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ, ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ ਸੋਇਲਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ, ਹਾਈਪਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ, ਹਾਈਪੋ ਘੱਟ ਲਈ, ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਟ ਇਨਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਹਾਈਡਰਿਕ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੋਇਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਨੇ। ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਲੇਕਸ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਆਰ ਸ਼ੈਲੋ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ, ਸ਼ੈਲੋ ਲੈਂਡਸ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਲੇਕਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡੀਪ ਔਰ ਸ਼ੈਲੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਇਨ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ lakes may or may not have any vegetation, they usually have no or very little vegetation. Therefore मतलब ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਵੈਟਲੈਂਡ ਐਂਡ ਅ ਲੇਕ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ এনवायरमेंट ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ they support rich flora and fauna, habitat to aquatic flora and fauna, migratory birds ਲਈ ਇਹ nesting sites ਜਾਂ resting sites provide ਕਰਦੇ ਹੈ। they act as a genetic reservoir for various species of plants, especially rice। ਇੱਕ genetic pool ਹੈ ਰਾਈਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਰਾਈਸ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਐਪਲ ਦਾ ਟਰੀ ਹੈ, ਐਪਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਐਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰਚਰਡ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੈ ਗੁਆਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਆਵਾ ਫਰੂਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਈਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਗ੍ਰਾਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਰਾਈਸ ਵਾਲੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। They carry out water purification, filtration of sediments and nutrients from surface water। अगला पॉइंट एक बारी पढ़ लो, ना दो तीन पॉइंट इकट्ठे ही है, मैं समझाना है। They act as riparian buffer। कल आप गल की सी यूट्रोफिकेशन वाला टॉपिक करते हुए, राइपेरियन बफर की चीज़ है कि एक वाटर बॉडी च वाटर डिस्चार्ज करन तो पहला एक आप एक बफर जोन क्रिएट करता जिथे आप वेजिटेशन मतलब ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੰਪੀ ਜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਨ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਬਫਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗੇਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਫਕੋਰਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਾਊਂਡ ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਪੜ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਨ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੈਟਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਈਕ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੂਗਾ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ 'ਚ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਨ ਆਫ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो वैटलैंड इज एक्टिंग एज अ राइपेरियन बफर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਬਫਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਪਿਉਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੌਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਰਿਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਟਲੈਂਡ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਡੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So you can like see this from this diagram कि if this is a stream, what wetland does is कि इत्थे water ਨੂੰ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾव ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, flowing water stays over this place for a certain while
इन दी मीनवाइल की हुंदा है, सैਡੀਮੈਂਟਸ सैटल हो जाते हैं, वाटर प्योरीफिकेशन हो जाती है, जो भी न्यूट्रीएंट्स वगैरह इत्थे उन्हां दी साइकलिंग वगैरह हो जाती है, प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेंदे हैं जिवें भी, एंड दैन रिलेटिवली प्योर वाटर एंटर्स स्ट्रीम। ये वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ वैटलैंड है, इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपां नूं वैटलैंड, एंड वाटर प्योरीफिकेशन न्यूट्रीएंट साइकलिंग इज वन ऑफ दैम। एंड ऑफ कोर्स जो वाटर ट्रैप हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो रहा, तो ये 2-3 ਜਿਹੜੇ पॉइंट है इकट्ठे ही, लाइक राइपेरियन बफर, न्यूट्रीएंट रीसाइकलिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर प्योरीफिकेशन एक दूजे नाल मिलते जुलते ਜਿਹੇ पॉइंट्स है। एंड इसे ही लाइन ऑफ थिंकिंग ਦੇ नैक्सट पॉइंट भी है फ्लड मिटीगेशन वाला। हजे आप डिस्कशन की सी इस साइड तो कि रन ऑफ आ रहा है, रन ऑफ की स्पीड स्लो हो जूगी क्योंकि इतने पानी सैटल डाउन कर जूगा एंड दैन स्ट्रीम च जाऊगा। हुण उल्टा इमेजिन करिए कि स्ट्रीम च फ्लड आ गया, जे वैटलैंड ना हुंदा तो स्ट्रीम का जिहड़ा फ्लडड वाटर है उन्हें एग्रीकल्चरल लैंड्स नूं डिस्ट्रॉय कर देना सीगा, उन्हें इत्थे जिहड़े शहर वसे होए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर देना सीगा। बट विच आ गया राइपेरियन बफर। हुण जो फ्लड आऊगा भी तो पहला फ्लड वाटर्स इस राइपेरियन बफर च जाऊगा, एंड ये वैटलैंड बहुत फैलिया होया एक्सटेंसिव एरिया है, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, तो एक बफर जोन की तरह एक्ट करूगा, फ्लड मिटीगेशन च भी अपनी हेल्प करूगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट है। लास्ट ਇਹਦਾ पॉइंट तुम कह सकते हो इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल इको टूरिज्म वाली बर्ड वॉचिंग एक्टिविटी, माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आते हैं, या वैसे फिशिंग बोटिंग ऐसी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। तो दिस इज़ द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। नाउ व्हाई वेटलैंड्स आर गेटिंग डिप्लीटेड इन आवर एनवायरनमेंट। एक्सैसिव पोल्यूटेंट, हम किसी भी चीज़ एक्सैस ऑफ, मैं कल भी गल की सी, इन जनरल अपन पता ही है एक्सैस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक लिमिट तक ही चीज़ां ठीक रहिंदी हैं, एक लिमिट तक ही वैटलैंड की कैपेसिटी है कि वह न्यूट्रीएंट्स नूं अबजॉर्ब कर सकता है, वो टॉक्सिक कैमिकल्स नूं अबजॉर्ब कर सकता है। जे एक्सैसिव पोल्यूटेंट्स आएंगे वो वैटलैंड की अबजॉर्ब करने की कैपेसिटी तो ज़्यादा होंगे, तो वैटलैंड की क्वालिटी भी डिटीरियोरेट होगी, एंड उसकी जी एबिलिटी टू प्योरीफाई वाटर है हुण वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जूगी। Excessive pollutants are dumped into wetlands beyond their recycling capacity. Deforestation, ਜਿਹੜੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦਾ ਅਰਾਊਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਕੋਟੋਨ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਐਕੁਏਟਿਕ ਐਂਡ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਲੈਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਵਾਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਟਰ लैंड विच इकोटोन, वाटर डोमीनेंट हौली 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 करके लैंड डोमीनेंट फैक्टर बन गया। एंड जिहड़ा वैटलैंड का सराउंडिंग एरिया उत्थे एक्सैसिव डिफोरेस्टेशन आप करांगे, ऑफ कोर्स वैटलैंड्स डिप्लीट होंगे। ओवर फिशिंग, ओवर ग्रेजिंग, लाइक एक्वाकल्चर, कमर्शियल फिशिंग एक्टिविटीज़ प्रैक्टाइज की जाती हैं। हद तो ज़्यादा एक्सप्लॉयट करोगे तो ऑफ कोर्स डिप्लीशन होगी। कन्वर्जन ऑफ वैटलैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इंक्रोचमेंट बाय पब्लिक एंड माफिया, ये तो हुण तुहानूं पता ही है, लैसर सेड द बेटर। सैंड माफिया एंड लैंड माफिया एंड कब्जा माफिया के वैटलैंड्स नूं, क्योंकि अगेन वाटर लॉग्ड सॉयल एंड काफ़ी सारे, हुण आपां जे पंजाब की गल ना करिए, अदरवाइज जनरल इंडिया की गल करिए, राइस एक मेजर क्रॉप है। एंड inundation of rice in the inundation of soil in the earlier periods of rice cultivation is very important। and wetlands च तां soil वैसे ही wet है, तो rice cultivation practice कर लेंदे लोग कब्जा करके ज़मीन ते। removal of sand from beds near the seas makes the wetland vulnerable to the wave action and the tidal bowls। ਤਾਂ coastal areas च ਜਿਹੜੇ wetlands है उत्थे भी over exploitation of sand वगैरह हो रही है, एंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ वैटलैंड की कैपेसिटी है टू एक्ट एज अ बफर जोन वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो वॉट कैन वी डू, एक तो टर्म ना है मिटीगेशन, तुसी पहला ध्यान च रखना है। एक टर्म हुंदा प्रिवेंशन। डिजास्टर मैनेजमेंट च आप दो टर्म्स यूज करते हैं, प्रिवेंशन एंड मिटीगेशन। कि आप ऐसा की करिए, की स्टैप्स चकीए कि आप डिजास्टर प्रिवेंट कर सकिए कि डिजास्टर होवे ही ना। एक ये है कि हम कुछ चीज़ां बंदे की कैपेसिटी लिमिटेड है, कुछ चीज़ां अपने कंट्रोल तो बाहर है।
ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਥਕੁਏਕ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਅਰਥਕੁਏਕ ਤਾਂ ਆਊਗਾ। What can be done to mitigate the effects of earthquake? ਕਿ once earthquake ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਲੋ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੇਨਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਰਡਸ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਫਲੱਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਫਲੱਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਕੁਆਕਲਚਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਫਲੂਐਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਆਰ ਡਿਸਚਾਰਜਡ ਇਨਟੂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਫਲੂਐਂਟਸ ਆ ਭਾਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਨ ਆਫ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਨਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Afforestation, weed control, preventing invasive species. Again ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਹਰੀਕੇ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਬਿਨ ਥਰੂ ਦੈਟ ਰੀਜਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਹਾਇਸਿੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। It is an example of this plant variety is an example of invasive alien species. टर्म है invasive alien species, alien ਬਾਹਰ ਦੀ, invasive ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੇਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਟਿਵ ਟੂ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੱਕ ਐਕਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ XYZ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਵੈਬ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਬਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੇਸਿਵ ਏਲੀਅਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਨਵੇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤਿੱਬਤਨ ਐਂਟੀਲੋਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਿੱਬਤਨ ਐਂਟੀਲੋਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨਸ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਵੀਂ ਜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖਾਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹਿਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਫ ਜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਸਟ ਟੂ ਕਨਵੇ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਏਲੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਮੇ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਇਨਵੇਸਿਵ ਏਲੀਅਨ ਸਪੀਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡੈਮੇਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਨੀਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਤਾਂ invasive alien species like water hyacinth, they are also responsible for depletion of wetlands.
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਮੈਜਰਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨ ਮਿਟੀਗੇਟ ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਵੈਟਲੈਂਡਸ। ਰਾਮਸਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਇਨ ਈਰਾਨ। 1971 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਵੈਟਲੈਂਡਸ। The most important international treaty है regarding the sustainable use of wetlands। तो 2 फरवरी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ it is celebrated as World Wetland Day। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵੈਟਲੈਂਡਸ। ਮਤਲਬ ਫਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵੈਟਲੈਂਡਸ। ਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੂ ਦਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਨ देयर ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰੀਜਨਸ। तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ईच कंट्रैक्टिंग पार्टीज डेजिग्नेट कर दिया एटलीस्ट एक wetland। India is also a contracting party and as of today we have 37 wetlands। उसते आप आवांगे there are over 2300 रामसर मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड थानू पता होना चाहिए 2000 तो ऊपर है। मोटा एग्जैक्ट फिगर याद रखनी एडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन मोर देन 170 countries। The country with the highest number of sites UK है, factual information। country with the greatest area of wetlands है Bolivia। इंडिया से ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫॉर ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ। ਇਹ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ when like if these any of these criteria is satisfied only then the wetland can be designated as a Ramsar wetland। it contains a just ਆਪਾਂ go through ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਸਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। if it contains a representative rare or unique example of ਨੈਚੁਰਲ ਔਰ ਨੀਅਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਟਲੈਂਡ ਟਾਈਪ। ਹੁਣ ਰਾਮਸਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਗਏ ਈਕੋਸਿਸਟਮਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨੈਚੁਰਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਣ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ एक्वेरियम बनाता मैं या क्रॉपलैंड ही है, राइस ट्रांसप्लांटेड राइस वाली फील्ड है, वो चीज़ें इस इंक्लूडेड नहीं हैगियां। बट जे मैं कितने वाटर फ्लो रोकता, एक डैम बनाता, एक बराज बनाता एंड थोड़ा जा वाटर डाइवर्ट करके एक नेचुरल इकोसिस्टम वेटलैंड इकोसिस्टम डेवलप करता, वो इससे इंक्लूडेड है। नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड। इट सपोर्ट्स कोई स्पीशी ऐसी सपोर्ट करती है वल्नरेबल एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ਨੂੰ सपोर्ट करता है, कोई ऐसे प्लांट या एनिमल स्पीशी ਨੂੰ सपोर्ट करता है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेनटेनिंग दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। कि एक ऐसे मतलब जो कि किसी कीस्टोन स्पीशी ਨੂੰ या किसी टॉप प्रेडेटर ਨੂੰ सपोर्ट करता है तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਪੀਸ਼ੀ ਐਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ देयर ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ endangered species 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ endangered ਬਣ ਜਾਏ। ਇਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਪੋਰਟਸ, ਹੁਣ ਬਰਡਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਪੋਰਟਸ 20,000 ਔਰ ਮੋਰ ਵਾਟਰ ਬਰਡਸ या फिर 1% of their total population। It supports a significant proportion of indigenous fish। ਹੁਣ wetland है, water है, fish भी होगी तो significant proportion of indigenous fish ਨੂੰ support करता है। तो अपने इन जनरल ईकोसिस्टम आ गया, ईकोसिस्टम तो बाद सर्टन स्पीशीज़ आ गए ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट फॉर दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या ਜਿਹੜੇ क्रिटिकल स्टेज ऑफ देयर लाइफ है, बर्ड्स आ गए, फिश आ गए, कोई भी क्राइटेरिया ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾय दी ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ।
ਕੰਟਰੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ। So on the basis of this, there are 37 Ramsar sites in India. Actually, मतलब 2 साल पहला 2018 तक 26 sites ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2019 ਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਬਨਸ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ 10 sites ਇਸ ਸਾਲ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2020 ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੀਜ਼ ਨਿਊਐਸਟ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਰੰਟਲੀ ਅਪਡੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं थोनों ऑलरेडी दसिया सुंदरबंस वैटलैंड 2019 च डेजिग्नेट किए गए। सुंदरबंस डेल्टा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट वाला जो पूरा रीजन है, एस्चुरीन रीजन, मैंग्रोव रीजन, सारिया मतलब वैटलैंड रीजन भी है। सुंदरबंस की खास गल की है, आप जो तीन अज मेन टॉपिक करने हैं तीनों ही इतने सैटिस्फाई हो। इट इज़ अ वैटलैंड, इट इज़ अ मैंग्रोव रीजन, इट इज़ एन एस्चुरीन रीजन क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। And it is also ਤੁਸੀਂ याद रखना है the largest Ramsar site। 37 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਾਈਟ ਹੈ ਸੁੰਦਰਬਨਸ। ਫਰਸਟ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਚਿਲਕਾ ਚ 1971 ਚ ਆਪਾਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਇਨ ਉੜੀਸਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਹੈ, 3 पंजाब च है एंड 6 उत्तर प्रदेश च है। नाम थोड़े जे इदा ही है, बाकी स्टेटा वाले तुसीं याद रखने हैं। नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र च है। पंजाब च जिहड़ियां 3 साइट्स है ये हुण PCS पॉइंट ऑफ व्यू तो तुसीं इंपॉर्टेंट है, ध्यान च रखना है। केशवपुर म्यानी, ब्यास कंजरवेशन रिजर्व एंड नंगल, ये 3 वैटलैंड्स पंजाब च डेजिग्नेट कीते हैं। पंजाब च ऑलरेडी 3 साइट्स एग्जिस्ट करदियां सीगियां, कांजली वैटलैंड, रोपर वैटलैंड एंड हरीके वैटलैंड। 3 होर ऐड हो गई, टोटल 6 वैटलैंड्स हो गए पंजाब दे। उत्तर प्रदेश च नवाबगंज, पार्वती आगरा, सम्मान, समासपुर, संधी एंड सलसाए नवार, ये 6 यूपी दियां साइट्स है। तो 10 2020 च, एक 2019 च, 26 अपनियां पुरानियां सीगियां। ये पुरानियां वालियां वैटलैंड्स दा मैप तुहानूं दिता होया, तुसीं साइट्स ध्यान च रखनियां किहड़ियां कित्थे है। 10 जड़ियाँ न्यू है ये भी तुसीं ध्यान च रखनी है। 10+1 जड़ियाँ न्यू है। एक बार मोटा मोटा मैं मैंशन कर दिना, तुसीं साइट्स की लोकेशन ध्यान च रखनी है कित्थे की है, किहड़ी साइट है। जम्मू कश्मीर वाले रीजन च 4 इंपॉर्टेंट वैटलैंड साइट्स है, रामसर साइट्स है। वूलर लेक, द लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक ऑलरेडी आप इसकी डिस्कशन की थी। कश्मीर के 2 फेमस जड़े लेक है, वूलर लेक, डल लेक। तुसीं याद रखना है कि वूलर लेक रामसर साइट है, डल लेक इज नॉट आ रामसर साइट। इस तरह मैं थोनों कश्मीर के ही 2 ब्रैकिश वाटर या सैलाइन वाटर लेक्स दसे सीगे, पैंगोंग लेक एंड सोमरीरी लेक। वंस अपॉन अ टाइम जो आप 4th क्लास लाई सी मैप्स वाली। पैंगोंग लेक ज़्यादा फेमस लेक है, वो चाइना नाल डिस्प्यूट भी अपना चल रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ सॉल्टी वाटर या ब्रैकिश वाटर लेक, ज़्यादा फेमस है बट इट इज़ नॉट अ रामसर साइट। जी लैस फेमस लेक है उन्होंने सोमोरीरी लेक, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रामसर साइट। 2 होर लेक्स है थे, होकरसर एंड सुरिनसर मानसर। ये ज़्यादा वड्डियां रामसर साइट्स नहीं हैं, छोटे छोटे जे लेक है। तो दीज 4 रामसर साइट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, वूलर, होकरसर, सुरिनसर मानसर एंड सोमरीरी। हिमाचल प्रदेश च 3 रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है। पोंग डैम इज़ ऑन रिवर ब्यास। अब भाई थोड़ी जी लोकेशन मैप च जड़ा इंटरनेट तो मैंने सब तो सही लग्या, मैं वो कॉपी किया सीगा। इन्नी ज़्यादा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हैगी पोंग डैम की, पंजाब बॉर्डर वाली साइड पे है। पोंग डैम चंद्रताल, मनाली तो अगे लेक है, फेमस लेक। लाहौल वाले रीजन च चंद्रताल ट्रैक भी जाता है, हमता पास ट्रैक है मनाली तो, जे तुसीं जाना होवे। रेणुका जी वैटलैंड, 3 वैटलैंड्स हिमाचल प्रदेश दे है। पंजाब च 3 आपां न्यू ऑलरेडी कीते, केशवपुर छम, ब्यास कंजरवेशन एंड नंगल। 3 पहला तो सीगे कांजली वैटलैंड, रोपर वैटलैंड एंड हरीके वैटलैंड। राजस्थान च 2 रामसर साइट्स है। सांबर सॉल्ट लेक, द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्टी वाटर लेक कंप्लीटली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
Pangong is a disputed territory. Sambar salt lake ਤੁਸੀਂ याद रखना है राजस्थान च, one of the important source of salt as well. Keoladeo Ghana National Park. It is these are the two Ramsar sites in Rajasthan. गुजरात वाले रीजन च नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये मतलब इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो, इसलिए आप सारा ये देख रहे हैं. मध्य प्रदेश च भोज वैटलैंड. उत्तर प्रदेश च 6 न्यू ऐड हुई हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ पिछली स्लाइड च देखी हैं. एक अपर गंगा, अगेन मैप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. अपर गंगा रिवर, अपर गंगा वैली पोर्शन इज दी वैटलैंड डेजिग्नेटेड इन उत्तर प्रदेश. महाराष्ट्र च कोई नहीं सी, नंदूर मध्यमेश्वर न्यू वैटलैंड साइट इत्थे डेजिग्नेट हुई है. फिर कोस्टल रीजन च आ जाने इत्थे, ईस्ट कोस्ट वाले रीजन च, वैस्ट कोस्टल रीजन च घट है एंड राइटली सो, क्योंकि वैसटर्न कोस्टल प्लेन्स ही इन्ने ज़्यादा नहीं है, उत्थे रिवर्स ही इन्नियां ज़्यादा नहीं हैगियां. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इत्थे ज़्यादा ग्रैजुअली ज़्यादा वाइड है एंड ज़्यादा वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ इत्थे हो सकती हैं. तो केरला वाले रीजन च पहला 3 साइट्स इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड लेक, अष्टमुदी लेक एंड शस्तमकोटा लेक. ये तुसी अपनी शीट च देख लेना ये वाला मैप, वेम्बनाड, अष्टमुदी एंड शस्तमकोटा. सुंदरबंस मैं तुहानूं दस्सिया लार्जेस्ट अपना रामसर साइट इन इंडिया है सुंदरबंस, लेकिन 2019 च पिछले साल ही ऐड हुई है. उस तो पहला वेम्बनाड वॉज दी लार्जेस्ट रामसर साइट, तो हुण वेम्बनाड बन गई है सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट. एंड थर्ड नंबर पर अपनी चिल्का लेक. चिल्का वॉज दी फर्स्ट रामसर साइट टू बी डेजिग्नेटेड एंड इट इज़ ऑल्सो थर्ड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया. अगे चलते हैं, आप केरला वालियां 3 कर लियां. तमिलनाडु च पॉइंट कैलीमेयर, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश च, उड़ीसा च यू हैव 2 वैटलैंड्स, भीतरकनिका वैटलैंड्स एंड चिल्का लेक. चिल्का लेक बारे तुहानूं दसदा कि लार्जेस्ट लेगून, सेकेंड लार्जेस्ट लेगून इन इंडिया है. थर्ड लार्जेस्ट रामसर साइट है, सेकेंड लार्जेस्ट लेगून है. लार्जेस्ट लेगून तुहाडा इंडिया च वेम्बनाड लेक है. लैगून की यदि आप हुणे डिस्कशन करांगे अगे वाली स्लाइड्स च. चिल्का लेक भीतरकनिका मैंग्रोव्स है, भीतरकनिका वैटलैंड है, भीतरकनिका टाइगर रिजर्व भी है, वेरी इंपॉर्टेंट. दैन कैलकटा च है अपने ईस्ट कोलकाता वैटलैंड्स. नॉर्थ ईस्ट दी अपनी 3 साइट्स, एक सुंदरबन का तुहानूं पता ही है. नॉर्थ ईस्ट च 3 रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है. असम च दीपोर बील, मणिपुर च लोकटक लेक. लोकटक लेक फ्लोटिंग वेजिटेशन ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ. ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੋਕਟਕ ਲੇਕ ਹੈ. ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੈ, ਹਿਲਸ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਿਲਸ ਹੈ. ਦੋਨੋਂ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਹਿਲਸ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੇਕ 'ਚ. ਸੈਂਟਰਲ ਬੇਸਿਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ. ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਵਰਡ ਡਰੇਨੇਜ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ. इंपॉर्टेंट इत्थे एस्पैक्ट है फ्लोटिंग वेजिटेशन. एंड इत्थे लोकटक लेक वाले रीजन च एक इंपॉर्टेंट नैशनल पार्क है केबुल लेमजाओ नैशनल पार्क इन मणिपुर. एंड त्रिपुरा च हैगी अपनी रुद्रसागर वैटलैंड. तो ये अपने 26 पुराने वैटलैंड सीगे, 11 न्यू तुसी याद रखनी है. टोटल 37 वैटलैंड्स इन इंडिया. एक आप पढ़िया रामसर कन्वेंशन. हम रामसर कन्वेंशन के नाल ही एक अटैच्ड अपेंडिक्स की तरह अटैच्ड है मॉन्ट्रू रिकॉर्ड. ये मॉन्ट्रियल नहीं है, मॉन्ट्रू ही तुसीं याद रखना. मॉन्ट्रू रिकॉर्ड एक ही है. इट इज़ अ सैपरेट रजिस्टर्ड दैट इज़ मेनटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ द रामसर कन्वेंशन. कादे लई इस भी वैटलैंड्स ही मैंशनड है, लेकिन इस वो रामसर वैटलैंड्स मैंशनड है जिथे इकोलॉजिकल करैक्टर चेंजेस इन द इकोलॉजिकल करैक्टर हैव अकर्ड or are occurring or are likely to occur as a result of कोई ह्यूमन इंटरवेंशन, पोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, थिंग्स लाइक दैट और एनी अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस. कि एक ऐसा वैटलैंड जितों की बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो एक सैपरेट एक सब सेट ऑफ द लार्जर सेट ऑफ रामसर वैटलैंड्स है. इंडिया दियाँ 2 साइट्स मॉन्ट्रू रिकॉर्ड च भी मैंशनड है. केओलदेओ घाना नेशनल पार्क राजस्थान वाला एंड लोकटक लेक ऑफ मणिपुर.
पहला चिल्का लेक वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मॉन्ट्रो रिकॉर्ड, लेकिन इट वॉज लेटर रिमूवड क्योंकि उत्थे आपां कंजरवेशन एक्टिविटीज़ कीतियां, उत्थों की बायोडाइवर्सिटी नूं आपां कंजर्व करन लई काफ़ी हद तक सक्सैसफुल होए। तो ये दो जड़े साइट्स है तुसीं याद रखनी है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क वाला, लोकटक लेक वाला वेटलैंड एंड क्योलदेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान वाला। तो दीज टू साइट्स आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। फिर वेटलैंड्स नूं इंटरनेशनली तो रामसर कन्वेंशन एग्जिस्ट करती है, जी रामसर कन्वेंशन वाला ही क्राइटीरिया है, उस ही क्राइटीरिया के बेसिस से जी आप डिफरेंट क्राइटीरिया देखे सी, उन्ना ही क्राइटीरिया के बेसिस से इंडिया च चल रहा नैशनल वेटलैंड कंजरवेशन प्रोग्राम। एक्चुअली पहला ओरिजिनली 1980s ये वाला प्रोग्राम आप इंट्रोड्यूस किया, बट लेटली हम 2013 च आप की करता, अपने दो प्लान्स चल रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, नैशनल वेटलैंड कंजरवेशन प्रोग्राम एंड नैशनल लेक कंजरवेशन प्रोग्राम। दोनों ही वाटर बॉडीज नाल डील कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड एस्पैक्ट्स है। तो 2013 च गवर्नमेंट ने दोनों प्लान्स नूं, दोनों प्रोग्राम्स नूं क्लब करता नैशनल प्लान फॉर कंजरवेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। पर चलता हजे भी उदा ही है कि वेटलैंड वाला एक कंपोनेंट अलग चल रहा है, लेक्स वाला कंपोनेंट अलग चल रहा है। तो implemented since 1885-86, criteria is same as the criteria for Ramsar wetlands। ऐसे ही कंटेक्स्ट 2017 अपने न्यू वेटलैंड रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए सीगे। इन लाइक दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट, लेट अस सी कि व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ दिस न्यू रूल्स दैट वर इशूड इन 2017। 2017 तो पहला, लाइक आई विल बी कंपेयरिंग द सिचुएशन विद द प्री 2017 वेटलैंड रूल्स एंड पोस्ट 2017 सिचुएशन। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट को हुंदी सी अथॉरिटी, सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी एक एग्जिस्ट करती सी, जिहड़ी कि इंडिया च सारे वेटलैंड्स नूं रेगूलेट करती सी, उन्हां दा एरिया ईयर मार्क करती सी, डिमार्केट करती सी एंड कंजरवेशन एक्टिविटीज़ नूं लीड करती सी। हुण इन्हां न्यू रूल्स ने की कीता, डिसेंट्रलाइजेशन करती, स्टेट गवर्नमेंट्स नूं पावर दी कि हुण तुसीं वैटलैंड्स नूं डिमार्केट करना है। वैटलैंड्स ऑफ नैशनल इंपोर्टेंस नूं भी स्टेट गवर्नमेंट्स ही डिमार्केट करनगियां, स्टेट गवर्नमेंट्स ही एप्रोप्रिएट रेगूलेशंस वगैरह इंट्रोड्यूस करनगियां कि किवें वैटलैंड्स नूं कंजर्व करना है। स्टेट गवर्नमेंट्स ही कुछ इदां दीयां रेगूलेशंस पास करनगियां या गाइडलाइनस इशू करनगियां कि किन्ना एक्टिविटीज़ नूं कीता जा सकदा है, किहड़ियां एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, किहड़ियां एक्टिविटीज़ कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बस एक ही काम रह गया कि इंश्योर करना कि वैटलैंड रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना काम कर रही हैं। वैटलैंड किहड़ा होगा, उहदा एरिया कितना होगा, उत्थे किहड़ियां एक्टिविटीज़ करनी है नहीं करनी है, ऑल दी रिस्पोंसिबिलिटीज़ गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। हुण स्टेट्स की करनगियां इस चीज़ नूं करन लई, स्टेट वैटलैंड अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करनगियां हैडेड बाय दी स्टेट एनवायरमेंटल मिनिस्टर। ये अथॉरिटी ये वाला उपर वाला काम करूगी कि वैटलैंड्स नूं मैनेज किवें करना है। पहला जी मैं तुहानूं दस्सिया सेंट्रल वैटलैंड रेगूलेटरी अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, इट वॉज सपोज टू बी रिप्लेस्ड बाय नैशनल वैटलैंड्स कमेटी, जी मॉनीटर करूगी कि स्टेट्स ठीक काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। दैन बैंड एक्टिविटीज़ या प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ या रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ किहड़ियां होणगियां, ये भी रिस्पैक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ही नॉमिनेट करनगियां। तो ये मतलब आपां नूं प्रीलिम्स लई तां बस ये न्यू रूल्स पता होने चाहिए है। इन्हां रूल्स की आपां मेन्स वाली क्लास देखेंगे, काफ़ी क्रिटिसिज्म वगैरह हुई सी कि तुसीं स्टेट गवर्नमेंट नूं अथॉरिटी दे दी नैशनल इंपोर्टेंस दे वैटलैंड्स नूं भी गवर्न करन लई, एंड कोई एक सेंट्रल सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता भी किहड़े वैटलैंड च की करना है। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब नाल उहनूं मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल एज फार एज दी नैशनल वैटलैंड न्यू वैटलैंड रूल्स आर कंसर्न। तो ये अपना पूरा वैटलैंड्स वाला सिस्टम, वैटलैंड्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप तुहानूं पूरा हुण क्लैरिटी होगी व्हाट इज़ वैटलैंड, व्हाट इकोलॉजिकल फंक्शन वैटलैंड्स परफॉर्म एंड हाउ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट एफर्ट्स वी आर डूइंग इंटरनेशनली एज वेल एज नेशनली टू कंजर्व द वैटलैंड्स। Now we move to our second topic, that is the estuarine ecosystem. Yet another second example of our ecotone ecosystem. Estuary, ਆਪਾਂ geography ਚ दो terms ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, estuary and delta. ओहो डेथ ही आ रही है हाथ च, समझ लेना भी ये डेल्टा ही है।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਵੱਲ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸਚੁਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਡੈਲਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪਡ ਫੀਚਰ ਫਾਰਮਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ deposition of sediments by the deposited by the river just before joining the mouth. Estuary की है? एक triangular funnel shaped feature formed as a result of river directly meeting the sea without any formation of delta, without any deposition of sediments. Geography च ਆਪਾਂ ਇਹ distinction पढ़ी सी। As far as environmental studies are concerned, we simply study estuarine ecosystem. In the environmental studies, what is an estuary? The place where fresh water meets the fresh water of the river meets the saline water of the sea, where a river joins the sea. The mouth of the river wala jada area that is regarded as an estuarine ecosystem. So मतलब मोटा मोटा हुण एस्चुरी च तां इदां किते नहीं लिखिया कि गल भी ठीक है कि एस्चुरी की डेफिनेशन च ये तो किते नहीं लिखा कि डेपोजिशन ऑफ सैडीमेंट्स नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि दी प्लेस वेयर दी रिवर जॉइन्स द सी। हुण जो डेपोजिशन ऑफ सैडीमेंट्स हो गई है तो डेल्टा बन गया, जो डेपोजिशन ऑफ सैडीमेंट्स नहीं हुई है तो एक नॉर्मल एस्चुरी है। ठीक है जी। तो एंड इन एनी केस हो की रहा फ्रैश वाटर ऑफ द रिवर्स इज मीटिंग दी सलाइन वाटर ऑफ द सीज। तो एक बाउंड्री जोन जो डिवेलप हो गया जो हाई टाइड आऊगा सी लैवल थोड़ा जा राइज करूगा तो सी वाटर अंदर की तरफ आने की टेंडेंसी रखूगा, सलाइन तो फ्रैश वाटर की तरफ आने की टेंडेंसी रखूगा। लो टाइड आऊगा सी लैवल थोड़ा थले चला जाऊगा, इतों फ्रैश वाटर सी वॉल जाऊगा। रस्ते च एक ट्रांजिशन जोन आ रहा है जिथे फ्रैश वाटर एंड सलाइन वाटर आपस से मिल रहे हैं। दैट इकोसिस्टम, दैट रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्चुरीन इकोसिस्टम। इकोटोन की एक एग्जाम्पल है मेरीन बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। It is a place where a river or stream opens into the sea, partially enclosed coastal area of brackish water. Of course, salinity sea level तो घट ही होगी relatively क्योंकि fresh water भी आ रहा है। And one of the more streams flowing into sea with a free connection to the open sea. Important है। अगे आप मैं तुहानूं दस्सिया कि ਆਪਾਂ लेगून वाला भी एक चीज़ करांगे। लेगून ते एस्चुरी च ही मेन डिफरेंस है कि इत्थे फ्री कनैक्शन विद दी ओपन सी हुंदा है, कट ऑफ नहीं हैगा कि दिस एस्चुरी, दिस माउथ ऑफ द रिवर इज ओपनली कनैक्टेड विद द सी। किसी पॉइंट ऑफ टाइम ते ब्लॉक नहीं हुंदा, एक लेक दी फॉर्म नहीं अज्यूम करता। ऑफ कोर्स रिवर आ रही है सी च जाऊगी तो ओपन कनैक्शन तो होगा ही। मैं तुहानूं गल दसदी है, एस्चुरीज आर द ट्रांजिशन जोन। All plants and animals in estuaries, they are subjected to variations in salinity. कदे फ्रैश वाटर ज़्यादा हो गया, कदे सलाइन वाटर ज़्यादा हो गया, तो वेरीएशन इन सैलिनिटी होंदी रहती है। तो जोड़े ऑर्गेनिजम्स भी एस्चुरीन इकोसिस्टम च एग्जिस्ट करते हैं, दे मस्ट हैव अडेप्टेड दमसेल्व्स टू दिस सिचुएशन ऑफ वेरीइंग सैलिनिटी। एंड किवें करते हो रेगूलेट उस चीज़ नूं आपां कहने ऑस्मो रेगूलेशन, कि कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स के हिसाब नाल उन्हां दी बॉडी, उन्हां दी स्किन अडेप्ट कर लैंदी है। दिस इज ऑस्मो रेगूलेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एस्चुरीज हजे तक दी डिस्कशन तो क्लीयर ही है। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स, दे आर ईवन मोर प्रोडक्टिव दैन दी नॉर्मल वैटलैंड्स। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਰੀजन 'ਚ मैंग्रोव्स वगैरह मिलते हैं या अदरवाइज ओवरलैंड ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैटलैंड्स मिलते हैं। एस्चुरीज themselves are an example of wetland, but normal wetlands and estuaries के comparison से estuaries are more productive because of mixing of the fresh water and saline water. Marine ecosystems of marine organisms of both the ecosystems exist. फिर एक होर तरीके नाल भी एस्चुरीज इंपॉर्टेंट है। फोटो कहाँ है? पिछे रिवर एक फ्लो च मूव कर रही है, इत्थे ओशनस च वेव्स वगैरह स्ट्राइक कर रही हैं कोस्टल रीजन से, लेकिन जिहड़ा एस्चुरी वाला रीजन हुंदा है इत्थे फ्लो ऑफ वाटर बहुत ही मिनिमल हुंदा है। ना वेव्स इन्नियां हार्शली स्ट्राइक करदियां इस रीजन च क्योंकि वाटर दा फ्लो है।
इस करके एक शैल्टर्ड रीजन की तरह भी एक्ट करती है एस्चुरी। एक शैल्टर्ड थोड़ा जा सेफ या समूथ रीजन की तरह एक्ट करती है जिथे वाटर इन्ना ज़्यादा टर्बूलेंट नहीं हैगा, तो जड़ियाँ स्पीशीज़ थोड़ी जी शांति पसंद करती हैं वो इत्थे अपना घर बना सकती हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट दी स्पीशीज़, ह्यूमनस दे लई भी एस्चुरीज प्रोवाइड अ वेरी लेट्स से सैटलमेंट फ्रेंडली कंडीशंस, क्योंकि इत्थे मरीन प्रोडक्टिविटी अच्छी है, एक्वेटिक प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो इत्थे फूड अवेलेबिलिटी भी बैटर होंदी है। द कोस्टल कम्युनिटीज दे आर डिपेंडेंट ऑन दी मरीन फूड, तो इत्थे फूड अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होंदी है। द सिटीज टेंड टू बी लोकेटेड ऑन दी एस्चुरीज, पोर्ट्स टेंड टू बी लोकेटेड इन दी एस्चुरीज, अगेन क्योंकि टर्बूलेंट वाटर्स नहीं होंदे। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है ह्यूमन सैटलमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी, फूड पॉइंट ह्यूमन फूड नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी, ह्यूमन कमर्शियल नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी। तो their wetlands are rich in natural resources including fisheries, deep and well protected, इसलिए construction of ports भी aid होंदी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ, and they are heavily populated regions of the world. Kolkata located on the mouths of river Hooghly, New York located on the mouths of river Hudson। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾਊਥਸ ਆਫ ਦੀ ਰਿਵਰਸ 'ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ 60% ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਐਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਲੈਗੂਨ ਐਂਡ ਐਨ ਐਸਟਰੀ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਐਂਡ observe this image. Now there is this lake which is detached from the sea. ये open sea है, a lake है. This lake is detached from the sea. This lake has no opening from which fresh water is being added. इस केस च की है कि fresh water is continuously supplied by the river. इस केस च कोई भी fresh water ਦਾ source नहीं हैगा। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੀ ਵਾਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੀ ਰਿਸੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਲੇਕ ਜਾਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਟਾਈਡਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੋ ਟਾਈਡ ਆਊਗਾ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਰਹੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ having known these conditions, can you tell me what are the, like, can you enumerate differences between and a lagoon and an estuary? Has a fresh water source, no fresh water source। इन्हां दोवां च relatively ज़्यादा saline कौन होगा, ज़्यादा salinity किसते होगी, इत्थे या इत्थे? इत्थे तो फिर भी fresh water आ रहा है, इस करके यह less saline है, इत्थे कोई fresh water नहीं आ रहा है, इस करके यह ज़्यादा saline है। एस्चुरीज यूजली हो थोड़े जे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसिस डिस्कस करने होन, एस्चुरी यूजली थोड़ी जी डीप होंदी है क्योंकि रिवर की डेप्थ के उत्ते डिपेंड करता है। ये यूजली जिहड़ा रीजन है शैलो होंदा है एज कंपेयर टू एस्चुरी। एक जनरल जी जे डिस्कशन करिए क्योंकि एज सच इत्थे कोई मतलब डीप होने का कोई कारण नहीं गा कि एक सी सीगी, ये पहला कोस्ट सीगा, हुण इदां कि एक पोर्शन डिटैच हो गया बस इत्थे पानी डिपोजिटेड है तो रिलेटिवली शैलो होंदा है। दे कुछ डिफरेंसिस है बिटवीन लगून्स एंड एन एस्चुरी। एक फ्लो डायनेमिक्स के बेसिस ते भी डिफरेंस है। ऑफ कोर्स हुण इत्थे पानी रेगूलरली फ्लो कर रहे, इत्थे स्टिल वाटर है, वन ऑफ द डिफरेंसिस बिटवीन लगून्स एंड एन एस्चुरी। तो यह तुसीं थोड़े जे डिफरेंसिस ध्यान च रखने हैं बिटवीन लगून एंड एन एस्चुरी। एंड मैं तुहानूं दस्सिया इंडिया की बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लगून एक चिल्का लेक और एक वेम्बनाड लेक, दोनों आपां रेफरेंस किया है। वेम्बनाड लेक केरला च एंड केरला इन जनरल इज नोन फॉर इट्स बैकवाटर्स। बैकवाटर्स ऑफ केरला नथिंग बट एग्जाम्पल्स ऑफ लगून्स। वो जिथे हाउस बोट जी केरला टूरिज्म की एड आती है, जो तुसीं घूमन गए हुए हो तो लाइक यू वुड हैव एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड कि ऑल दोज बैकवाटर्स ऑफ केरला दे आर एग्जाम्पल ऑफ लगून। एंड अनदर फेमस एग्जाम्पल ऑफ लगून इज चिल्का लेक। Now we come to our next topic, mangroves। ਉਹ trees, ਉਹ ecosystem, ਉਹ forests ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨਸ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਐਸਚੁਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਉੱਥੇ ਰਿਵਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਰਿਵਰ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਵਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, no fresh water is being added to this region, there is no river, no stream, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜ਼ੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ मतलब उस रीजन च उस इकोसिस्टम च मैंग्रोव फॉरेस्ट सर्वाइव करते हैं। वो ट्रीज जिन्होंने अपने आप नू सॉल्टी वाटर लॉग्ड सलाइन कंडीशंस च रहन लई अडैप्ट किया होया। कोस्टल बिल्कुल सी वाली साइड ते जिहड़े ट्रीज वगैरह हुंदे है, littoral forest ecosystems, they are located between land and sea and they are the one of the best examples of ecotone. Mostly evergreen forest, nature of trees तुसी याद रखनी है evergreen forests हैं and mangrove usually tropical regions से ही पाए जाते हैं। temperate regions से कोई mangroves नहीं होंगे। temperate regions दी जड़ी coastline हो थोड़ी relatively barren होंदी है। रीजन ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂਗਰੋਵ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਡੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਸੌਲਟੀ ਵਾਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਲਟਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੌਲਟਸ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੀਜਨਸ 'ਚ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸਨਲਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਵਾਟਰਸ 'ਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟੈਂਪਰੇਟ ਰੀਜਨਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਗਰੋਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Mostly evergreen forests that grow in the sheltered low-lying coasts, estuaries, mud flats, creeks, ਜਿੱਥੇ ਵੀ sea water intrude ਕਰ ਰਿਹਾ land ਦੀ ਤਰਫ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੇ forests grow ਕਰਦੇ ਆ in the tropical and subtropical regions. Highly productive ecosystems just like wetlands, just like estuaries. They are the breeding and the spawning ground for many commercially important fish. अगेन स्टेबल वाटर है। इकोटोन सिस्टम कोई भी होगा, आप कितनी बारी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट विल बी गुड फॉर दी बायोडाइवर्सिटी, फॉर दी वैरायटी ऑफ दी बायोडाइवर्सिटी दैट वुड बी प्रेजेंट इन दैट रीजन। Mangroves are the shrubs or small trees that grow in coastal saline water. They are salt tolerant trees। मुद्दे दी गल ते आइए। ये मीन सी लेवल है, हाई टाइड आया, लेट अस से वाटर लेवल ये हो गया। इस रीजन च जिहड़ा ट्री ग्रो कर रहा है उन्हें अपने आप को अडैप्ट किया होया है कि दिन च 6 घंटे तो मैं सलाइन वाटर च सबमर्ज होगा मेरे रूट्स, तो मैं अपने आप को किवें सर्वाइव करना, उन्हें कुछ अडैप्टेशनस कीतियां होणगियां। तो सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज है जिन्हों ने उन्होंने कंडीशनस से रहने लिए अपने आप को अडैप्ट किया होया है। किस तरह दी अडैप्टेशनस, ये दो तरह का इन्हों रूट सिस्टम इन्हों अडैप्ट करने लिए, मतलब इन्हों रूट सिस्टम इस तरह डिवेलप होंदा है कि उन्होंने कंडीशन से एग्जिस्ट कर सकती है। दो तरह दी रूट्स हो सकती हैं, दोनों तुसीं टर्म्स याद रखनी है, या तो स्टिल्ट रूट्स डिवेलप होंदी हैं या फिर नोमैटोफोर्स डिवेलप होंदे हैं। स्टिल्ट रूट्स की है, नाउ सी दिस इमेज, आ ट्री है। यूजली तो आप देखते हैं कि ग्राउंड कवर होंदी है, ग्राउंड के थल्ले रूट्स निकलती हैं, लेकिन इनदियां रूट्स उपरों ही स्टार्ट हो जाती हैं, हवा तो यह रूट्स स्टार्ट हो जाती हैं एंड दैन यह सस्पेंडेड रूट्स अल्टीमेटली नीचे सॉइल च जाती हैं। रीजन बीइंग हुण लैंड तो कवर्ड विद वाटर है एंड वाटर प्रोबेबली सलाइन है। एक तो वाटर लॉग्ड कंडीशन है, एयर अवेलेबल ही नहीं हैगी सैंड च। दूसरा फैक्टर है कि सॉल्टी वाटर है, ऑस्मो रेगुलेशन भी हो रही है एंड एयर रिक्वायरमेंट किवें पूरी हो रही है, दी रूट्स सस्पेंडेड इनटू दी एयर। या तो एक तरीका यह है भी रूट्स डिवेलप हो जाती हैं कि उपरों ट्री हवा च ही रूट्स सस्पेंड कर देंदी है। दूसरा तरीका यह है, हुण डायग्राम च तुहानूं इन्ना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, बट आ जिहड़े तुहानूं पॉइंटेड चीज़ां उपर नूं उभरियां जिहियां नज़र आ रही हैं, दीज आर नॉट प्लांट्स, दीज आर एक्चुअली रूट्स के इस थां ते बना देना। लेट अस सी दिस इज देयर इज दिस ट्री, आही ट्री ले लीए। हुण इनदी जिहड़ी रूट्स है ये लैंड तो जाके ऊपर नूं इमर्ज करदी हैं कि नीचे तो जमीन तो नीचे ऊपर नूं इमर्ज करदी हैं रूट्स। ब्लाइंड रूट्स कहने आपां न्यूमैटोफोर्स,
कि ये कहते हैं कि लैंड च तो यार ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हैगी, एनऑक्सिक कंडीशन है, हाइपोक्सिक कंडीशन है, कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन सर्वाइवल ਲਈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਇਲ 'ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਸੋਇਲ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 에ਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਰੂਟਸ ਹੈ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਦੇ ਦੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਐਂਡ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟੂ ਦੀ ਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹਾਈਪੋਕਸਿਕ ਮਤਲਬ ਲੋ ਆਕਸੀਜਨ, ਐਨऑक्सिक ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਟਿਲਟ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਦਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਊਮੈਟੋਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 에ਅਰ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੋਂ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਮਰਜ ਕਰਦੀਆਂ। ठीक है जी। फिर सॉल्ट मतलब ऑस्मो रेगुलेशन वो किमें करते हैं, रूट्स या अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ट्रीज, दे हैव सर्टेन सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स कि ये सॉल्टी वाटर अब्जॉर्ब कर लेंदी है, वाटर अपने अंदर रख रही है, सॉल्ट सिक्रीट कर देंदी है। दिस इज येट अनदर अडेप्टेशन। फिर आ चीज़ करने लिए लेकिन सॉल्ट्स नू सिक्रीट करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना कि पानी अपने अंदर रख लेना, सॉल्ट नू बाहर पुश आउट कर देना, इट इज़ एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। तो दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय सोलर एनर्जी इज दी ड्राइविंग फोर्स। इस करके दे आर कन्फाइंड ओनली टू दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजनस, जिहदी मैं पहला गल कीती सी। लास्ट इन्हां दी जिहड़ी अडेप्टेशन है दैट इज़ दी देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यूजली हुण क्रॉप्स किवें ग्रो करदे हैं, प्लांट्स किवें ग्रो करदी हैं, आपां लेट्स से सीड्स वाली प्रोपोगेशन दी गल करिए। सीड्स तुसीं सो करदे हो सॉइल च, थोड़े टाइम बाद वो सीड्स जर्मीनेट करदे हैं, शूट निकलदी है, उहदी रूट निकलदी है जमीन वाली साइड ते, शूट निकलती है ऊपर वाली साइड ते। सीड्स जर्मीनेट क्यों कीते, क्योंकि सॉयल तो उन्होंने वाटर भी मिलिया, सॉयल तो उन्होंने एयर भी मिली, दोनों चीज़ां, न्यूट्रीएंट्स भी मिले ऑफ कोर्स, न्यूट्रीएंट्स मिलूगी, ऑक्सीजन मिलूगी, वाटर मिलूगा, तो सूटेबल कंडीशंस डिवेलप होंगी एंड सीड जर्मीनेट करूगा तो प्लांट निकलूगा। लेकिन इस केस च when the entire land is covered with saline water at least for 6 hours of the day, ਤਾਂ सीड जर्मीनेट किमें करूगा। कोई सीड नैचुरली जे नीचे डिग भी गया तो इस एनऑक्सिक कंडीशन चो सीड जर्मीनेट किमें करूगा। तो उहदी उन्होंने अडेप्टेशन की हुई है विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस की है कि सीड्स उपर ही पहला जर्मीनेट कर जाते हैं जदों वो ट्री का पार्ट होंगे है। सीड्स जर्मीनेट इन दी ट्री इटसैल्फ बिफोर फॉलिंग टू दी ग्राउंड, थोड़ा जहा मच्योर हो गया, जिवें ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी आपां कीती है कि आपां अलग तो जर्मीनेट करवा लिया, एक सैपलिंग ग्रो करवा लिया नर्सरी च, एंड दैन एक फ्लडड फील्ड च उस सैपलिंग नू ग्रो करता। कुछ उदां दा ही नैचुरल सिस्टम है कि सीड्स जर्मीनेट ट्री का पार्ट होके ही कर लेंदे है, थोड़ा जिहा जदों जर्मीनेट हो जाती है, सैपलिंग बन जाती है, वो नीचे अटैच कर लैंदा अपने आप नू। सो ये कुछ अडेप्टेशनस कीतियां होईयां प्लांट्स ने अपने आप नू इस कंपलैक्स सिस्टम च, एक इस इन्हां हार्श कंडीशंस च सर्वाइव करन लई। तो ये अपने 3 ਜਿਹੜੇ ਈਕੋਟੋਨ ਵਾਲੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਐਸਚੁਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਮੈਂਗਰੋਵਸ ਕੀਤੇ। Now, having done various ecosystems and the biodiversity that is associated with these ecosystems, we'll be moving to the next part, the next portion of our syllabus, conservation of biodiversity. Lekin before we actually move to the biodiversity of India and various efforts that government of India has done to conserve biodiversity, ਆਪਾਂ ਕੁਛ like basic ਦੀ theoretical ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। let's see ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ threats to biodiversity ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, एंड कुछ होर थोरैटिकल कंसैप्ट्स है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की होंदा है, कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैगियां, आपां एक बारी नज़र मार लीए बिफोर मूविंग टू दी हार्डकोर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला जिहड़ा पोर्शन है। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, बहुत जनरल जी गल है। वट आर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी? ऑफ कोर्स हैबिटेट लॉस, ਆਪਾਂ डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ट्रीज ਨੂੰ कट कर रहे हैं, जिथे एनिमल्स ਰਹਿੰਦੇ है ਉਹਨਾਂ ਦੀ हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो जाऊगी तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ पॉपुलेशन तो dwindle करूगी ही। फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स, बहुत बड़ा जंगल था, बीच में से एक सड़क
निकाल दी हमने, तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स होगी, छोटियां छोटियां हैबिटेट्स बन गई। तो उन्होंने छोटियां हैबिटेट्स बड़े जंगल के शेर छोटी सी हैबिटेट में कन्फाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, उन्हें लगेगा कि यार हमारा घर ही छोटा सा हो गया, हम कैसे इतनी छोटी सी जगह में रहें। तो that is one of the reasons that is affecting biodiversity, and for this purpose we are actually making doing efforts like we are having elephant corridors, green corridors की एक elephant reserve है, दूसरा elephant reserve है। ये छोटू जे एलीफेंट रिजर्व एलीफेंट ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨ ਐਨੀਮਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ what we are trying to do is we are trying to construct green corridors connecting to elephant reserves, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। तो fragmentation of habitats, the point is that it is leading to loss of biodiversity. Of course, over exploitation of food resources, over exploitation for the purpose of food resources, overfishing, overgrazing, deforestation again, hunting and poaching, skin of the animals, tooth of the animals, hair of the animals, fur of the animals, it is in demand in international market. So for that the animals are poached and hunted, शौकिया तो तभी hunt करन hunting की जाती है, and that is leading to biodiversity loss. को-एक्सटेंशन एक ही चीज़ है, एक्सटेंशन तो नॉर्मल जहा वर्ड है, तुसी यू डू अंडरस्टैंड। को-एक्सटेंशन की है कि एक स्पीशी एक्सटेंड हुई, फिर वो स्पीशीज़ जड़ियाँ मतलब बाकी दियाँ स्पीशीज़ जड़ियाँ उस स्पीशीज़ उत्ते डिपेंडेंट सी, हुण उन्हां दा फूड खत्म हो गया तो वो भी एक्सटेंड हो गई। ये उस केस च होगा जिथे फूड वैब ज़्यादा कंपलैक्स नहीं हैगी, कि एक एनीमल वॉज डिपेंडेंट ऑन दी अदर एनीमल टू सैटिस्फाई इट्स फूड नीड्स, एंड एक आ वाला एनीमल जे विचों एक्सटेंड हो जाता है तो आ वाले एनीमल भी उहदा भी सर्वाइवल थ्रेटन हो जाऊगा। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, you very well understand, and alien species invasion. Already we have had the detailed discussion on this aspect कि एक नवी alien species आ गई, ਉਹਨੂੰ consume ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ alien species ਦੀ population explosion ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ food resources consume ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈ ਉਹ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਾਇਰ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। It would lead to loss of biodiversity, contribute to the loss of biodiversity. Now, what are the traits that adversely affect the or increase the vulnerability to extinction? ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਆਪਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਿਊਮਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। What are the traits that would lead to that would make a species vulnerable to extinction? ਜੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਰੇਅਰਿਟੀ ਔਰ ਲੋ ਅਬੰਡੈਂਸ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਲੈਟਸ ਸੇ 500 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਲੋ ਅਡਲਟ ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟਸ because of diseases or because of the natural conditions, because of the genetic makeup, a very less number of individuals that are born are ultimately raised to the ultimately living to the adult age. ਜੇ adult age ਤੱਕ ਉਹ live ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ reproduce ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, population dwindle ਹੋ ਜਾਊਗੀ। poor dispersability, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡੈਮਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਡਿਸਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈਬੀਟੇਟ ਜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਡਫਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਇਰਲ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਨਾਮ ਡਫਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਓਵਰ ਦੈਟ ਰੀਜਨ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾਮ ਡਫਾ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਇਰਲ। ਅਗੇਨ the traits that would increase the vulnerability to extinction.
डिस्पर्सल एबिलिटी होनी चाहिए, भावें इत्थे रख लो भावें उत्थे रख लो, सारी दुनिया 'च पाई जाती है। जिन्नी कॉस्मोपॉलिटन स्पीशी उन्ना उहदा लाइक सर्वाइवल चांसिस ज़्यादा होंदे है। हायर ट्रॉफिक स्टेटस इस ते आपां डिस्कशन कीती सीगी कि हायर ग्रास नूं कंजर्व करना है तो शेर नूं कंजर्व करना है। शेर दीयां रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, ज़्यादा स्पैसिफिक है, तो जिन्ना वो हायर ट्रॉफिक लैवल ते होऊगा उन्ना उन्होंने कंजर्व करना मुश्किल होऊगा, उन्नी उहदी वल्नरेबिलिटी टू एक्सटिंक्शन ज़्यादा होगी। टू स्पैसिफिक नीश रिक्वायरमेंट ये नाल ही एसोसीएटेड है कि ज़्यादा ही कुछ स्पैसिफिक नखरे होणगे, ज़्यादा स्पैसिफिक नीड्स होणगियां, तो उन्होंने नीड्स नूं पूरा कई बारी लाइक नेचर च नहीं हो पांदियां या डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट्स करके वो पूरियां नहीं हो सकदियां, उहदे चांसिस ऑफ एक्सटिंक्शन इनक्रीज करनगे। ये सारियां अडेप्टेबिलिटी नाल रिलेटेड है। जे अडैप्ट कर लैणगे चेंजिस नूं तां वो सर्वाइव करनगे, जे अडैप्ट ही नहीं करनगे चेंजिस नूं तां उन्हां दा सर्वाइवल मुश्किल हो जाऊगा। बायोडाइवर्सिटी कंजरवेशन की जे गल करिए हुण ये तां आपां थ्रैट्स तां कवर कर ले, बायोडाइवर्सिटी नूं जे आपां कंजर्व करना है तो आपां किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। इहदे इस कंटैक्सट टू डिफरेंट अप्रोचेज है, इन सीटू कंजरवेशन एंड एक्स सीटू कंजरवेशन। इन सीटू मौके ते इन दी सिचुएशन, एक्स सीटू मौके तो बाहर, ये मौका ये वारदात ते हो रहा है, ये चश्मदीद गवाह नहीं हुंदा। एक्स सीटू सिचुएशन तो बाहर अपने नैचुरल हैबिटेट च ही जे आपां बायोडाइवर्सिटी नूं कंजर्व कर रहे हैं। एक जंगल सीगा, उत्थे पहलां लेट्स से पोचिंग कीती जांदी सीगी, उत्थे एजेंट्स जाते सीगे जिहड़े कि कमर्शली एक्सप्लॉयट करते सीगे ट्रीज़ नूं, कटिंग ऑफ ट्रीज़ कमर्शियल लैवल ते चल रही सी। आपां की कीता उस एरिया नूं प्रोटैक्टेड एरिया घोषित करता कि हुण कोई इत्थों एक्सटर्नल एजेंट नहीं आऊगा जिहड़ा इत्थे ट्रीज़ कट करूगा। हुण कोई इत्थे ओपन एंट्री नहीं होगी कि जिन्हें जाना जाके शिकार कर लो, कैंपिंग कर लो, ओपन काम कर लो। आपां इस पर्टिकुलर नैचुरल एरिया नूं एक प्रोटैक्टेड एरिया डेजिग्नेट करता एंड इस इन्वायरमेंट च इस एरिया च आपां बायोडाइवर्सिटी कंजरवेशन कर रहे हैं। वो हो सकता है कोई स्पीशी स्पैसिफिक होवे, वो जिद्दां आपां गल कीता सीगा जिन्ना जे आपां टॉप प्रेडेटर्स नूं कंजर्व कर लांगे तो नीचे वाला सारा इकोसिस्टम ही कंजर्व हो जाऊगा। या इन जनरल आपां कह सकते हैं कि यार असीं वैसे ही बस ये एरिया च एंट्री बैन करती है, ये रिजर्वड फॉरेस्ट है कि इत्थे कोई एंट्री वगैरह नहीं होगी, इत्थे आपां ट्रीज़ नूं कंजर्व कर रहे हैं ताकि कोई फैलिंग ऑफ ट्रीज़ ना होवे। तो इस तरह की कंजरवेशन है इन सीटू कंजरवेशन। भावें आपां नैशनल पार्क डिमार्केट कीता है, भावें आपां बायोस्फीयर रिजर्व डिमार्केट कीता है, भावें आपां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिमार्केट कीती है, भावें आपां बर्ड सेंचुरी डिमार्केट कीती है, किसी भी तरह की आपां एक एरिया नूं डिमार्केट कीता है कि हुण इत्थे खुली लाइक लंगर नहीं लगा होया कि जिन्हें जाना है जाओ एंड जाके अपने रिसोर्सिस कंज्यूम कर लो, अपने फॉरेस्ट लाइफ वाइल्ड लाइफ शिकार करना है शिकार कर लो, जे ट्रीज़ नूं कटना है ट्रीज़ नूं कट लो। वो आपां रिस्ट्रिक्ट करता एंड इस नैचुरल हैबिटेट च आपां बायोडाइवर्सिटी नूं कंजर्व कर रहे हैं। दूसरा तरीका है एक्स सीटू कि आपां नूं पता है कि वल्चर्स दी पॉपुलेशन dwindle कर रही है, या लेट्स से टाइगर दी पॉपुलेशन dwindle कर रही है, तो आपां टाइगर नूं मतलब सम इंडिविजुअल्स ऑफ टाइगर स्पीशी नूं फड़ के आपां एक जू च कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, जूलॉजिकल गार्डन च कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, उत्थे उन्हां दी कैप्टिव ब्रीडिंग करवाने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हां दी पॉपुलेशन इनक्रीज करे। आपां नैचुरल हैबिटेट तो कढ़ के एक आर्टिफिशियल हैबिटेट क्रिएट किया, उहदे लई उहनूं सूटेबल कंडीशनस देने की कोशिश की ताकि वो रिप्रोड्यूस करे, उहदे नंबर्स इनक्रीज करन। घड़ियाल दी आपां कैप्टिव ब्रीडिंग की, घड़ियाल इंडियन रिवर्स से पाया जाता है, इंडस रिवर सिस्टम च पाया जाने वाला रैप्टाइल, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਿਵ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਿਵ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੋ ਕਰੇ, ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੇਟ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੰਸ ਦੇ ਆਰ ਮੈਚਿਓਰ, ਵੰਸ ਦੇ ਆਰ ਅਡਲਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਬਣਿਆ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਬਣਿਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰੋਚਿਸ ਹੈ, ਇਨ ਸੀਟੂ ਐਂਡ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ IUCN, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਗਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर पब्लिशिंग दी IUCN रेड लिस्ट। हर साल एक लिस्ट पब्लिश की जाती है जिसको प्यार से हम रेड लिस्ट बोलते हैं, क्योंकि रेड कलर पिंक कलर के पेजेस होते हैं उसमें। इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, कि वो कितना वलनरेबल है, कितना थ्रैटनड है, कि वो एक्सटेंट है, कि वो सफिशिएंट नंबर्स प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सब तो पहले तो आप नज़र मारते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज जिहदे तहत क्लासीफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स नूं। तो ऑर्गेनिजम्स कैन बी लाइक दो तरह के ऑर्गेनिजम हो सकते हैं, या तो IUCN नूं उस ऑर्गेनिजम बारे जानकारी है या जानकारी नहीं है। जे तो जानकारी नहीं है तो किस्सा ही खत्म हो गया, नॉट इवैल्यूएटेड, डेटा डेफिशिएंट, कि अपने को डेटा ही नहीं हैगा, आप इवैल्यूएट ही नहीं किया। मतलब आप सब तो पहला जी कैटेगरी है नॉट इवैल्यूएटेड, कि आप इवैल्यूएट ही नहीं किया। फिर दो गल्लां हो सकती हैं, आप इवैल्यूएट करन दी कोशिश की है, या तो अपने को सफिशिएंट डेटा अवेलेबल है किसी कंक्लूजन ते पहुंचने लई, या अपने को डेटा ही अवेलेबल नहीं हैगा, डेटा डेफिशिएंट। जे अपने को डेटा अवेलेबल हैगा, एडिकुएट डेटा अवेलेबल हैगा किसी कंक्लूजन ते पहुंचने लई, हुण उनदे बेसिस ते आपां की क्लासीफाई कीता है। सब तो थल्ले है लीस्ट कंसर्न, कि भाई ये तो सफिशिएंट नंबर्स अवेलेबल हैगे है, ना यदी हैबिटेट नूं कोई नुकसान है, ना ये एज सच कोई नीश रिक्वायरमेंट्स नूं कोई खतरा हैगा, तो लीस्ट कंसर्न है, लाइक गुड टू गो है, ग्रीन कलर। दैन हो सकता है कि हैबिटेट लॉस हो रहा हो सकता है उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही हो, लेकिन स्टिल इन्ने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है कि हजे बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू तो, एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई खतरा नहीं हैगा, नियर थ्रैटनड। फिर अगे जड़ियाँ 3 कैटेगरीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हजे तक तो एवं जाली चीज़ें सीगियां जड़ियाँ तुसीं याद रखनी है, वलनरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इन्हां 3 कैटेगरीज नूं थ्रैटनड कैटेगरीज मन्निया जाता है। इन्हां 3 कैटेगरीज नूं प्रोटैक्ट करन दी कोशिश की जाती है ग्लोबल लैवल ते, कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज वलनरेबल तो नहीं है, वलनरेबल टू वॉट, वलनरेबल टू एक्सटेंशन, कि ये नंबर्स इन्ने घट है, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, हैबिटेट ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ कि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये एक्सटेंट हो जाए विद अ हाई चांस ऑफ एक्सटेंशन इन दी वाइल्ड। अगला एंडेंजर्ड, हुण ये जिहड़ा क्राइटेरिया है ना वो अगली स्लाइड 'च दिता होया है, तुसीं अपने एंड ते नोट्स 'च पढ़ लेना है, बट जस्ट नॉलेज ली, नॉट दैट यू नीड टू स्पैसीफिकली रिमेंबर कि किन्ने उहदे इंडिविजुअल्स है, कित्थे पाया जाता है, किन्ने एरिया च पाया जाता है, एंड उहदी प्रोबेबिलिटी किन्नी है एक्सटेंशन दी वाइल्ड की। 20% प्रोबेबिलिटी है कि अगले 10 साल च, लेट्स से 10% प्रोबेबिलिटी है कि अगले 100 सालां च यह एक्सटेंट हो जाऊगा, तो वो वलनरेबल है। जो 20% प्रोबेबिलिटी है कि अगले 20 सालां च हो सकता है कि ये पर्टिकुलर स्पीशी एक्सटेंट हो जाए, तो एंडेंजर्ड है। जो 50% पॉसिबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि अगले 10 साल जो हो सकता है कि ये स्पीशी एक्सटेंट हो जाए, तो हो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इस तरह डिफरेंट क्राइटेरिया है कि जो 10 तो भी घट मैच्योर इंडिविजुअल रह गए है, 250 तो भी घट मैच्योर इंडिविजुअल्स रह गए तो आ कैटेगरी है, 1000 तो घट इंडिविजुअल्स रह गए तो आ कैटेगरी है। तो डिफरेंट क्राइटेरिया है, बट द आइडिया इज कि कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट स्टेटस कि इवेंचुअली ये वाली जी पर्टिकुलर स्पीशी है वो एक्सटेंट तो नहीं हो जाऊगी। तो अपनी 3 कैटेगरीज है, वलनरेबल कैटेगरी, एंडेंजर्ड कैटेगरी एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी। दीज आर दी थ्रैटनड कैटेगरीज जिन्होंने प्रोटैक्ट करने की लोड़ है। फिर 2 कैटेगरीज उपर होर है, एक्सटेंट ते एक्सटेंट इन वाइल्ड। कुछ स्पीशीज जड़ियाँ अदरवाइज अपनी वाइल्ड नैचुरल हैबिटेट च एक्सटेंट हो चुकी हैं, बट आप जूस च, बोटैनिकल गार्डनस च उन्होंने कंजर्व करके रखा होया है।
ਉਹ ਹੈ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਇਨ ਵਾਈਲਡ। ਆਪਣੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੇਅਰ 'ਚ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਈਲਡ 'ਚ ਉਹ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਨਾਸੌਰਸ, ਮੈਮਥ, ਐਲੀਫੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮਡ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਇਨ ਵਾਈਲਡ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਪੀਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। IUCN ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय IUCN। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ endangered and vulnerable 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆਫ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਵਾਈਲਡ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਐਡਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਵਾਈਲਡ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆਫ ਇੰਡੇਂਜਰਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਵਾਈਲਡ, ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਇਨ ਦੀ ਵਾਈਲਡ। ਤਾਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਟ ਡਿਮਾਂਡ protection and conservation. Neo threatened, likely to become vulnerable in future. Endangered ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, extremely high risk of extinction, ਇਹ like criteria case to case basis पे थोड़ा ਜਿਹਾ vary ਵੀ ਕਰਦਾ है and ਇਹਦਾ hardcore application of criteria ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 80 to 90% reduction in population ਹੋਈ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ and probability of extinction ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ point ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ extinct ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰੀਦੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਰ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 50% ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ज़्यादा सेंटी होके नहीं याद करना बट आइडिया थोड़ा क्लियर होना चाहिए। दैन देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक ही है, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय दिस पर्सन नॉर्मन मेयर्स। ये कहते हैं कि एक ऐसा रीजन जिथे वेरी हाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं एंडेमिक टू दैट रीजन। ऐसे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है दैट इज एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर रीजन। ये एक क्राइटेरिया। दूसरा एंड ओ वाला रीजन इज सफरिंग हैबिटेट लॉस, इज सफरिंग डिग्रेडेशन। मतलब ये हॉटस्पॉट क्यों है? एक तो ऐसा रीजन है कि जड़ा इट कंटेन्स बायोडाइवर्सिटी दैट इज ओनली फाउंड ओवर दिस रीजन ऑन एंटायर प्लैनेट। कि होर प्लैनेट ते, होर अर्थ च, होर दुनिया च ये जड़े स्पीशीज है किते होर नहीं पाए जा रहे। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंड इमेजिन इस हैबिटेट नू डिग्रेड किया जाए, इत्थे एक्सैसिव ह्यूमन इंटरवेंशन होवे, इत्थे एक्सैसिव ह्यूमन एक्सप्लोइटेशन होवे, हैबिटेट डिग्रेड होगा। उन्हां स्पीशीज़ का की बनूगा ਜਿਹੜੀਆਂ सिर्फ और सिर्फ ਇੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। they will eventually become extinct। ਤਾਂ ऐसे ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ this is a biodiversity hotspot। not because कि इत्थे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है but because इत्थे एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। क्राइटेरिया आप देखेंगे प्लांट बेस्ड क्राइटेरिया का, इत्थे एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एंड इत्थे डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट हो रही है। तो हो सकता है कि आ जी बायोडाइवर्सिटी है जी एंडेमिक टू दिस रीजन है वो इवेंचुअली एक्सटेंट हो जाए। एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन। These areas cover less than 2% of the world's land area and contain about 50% of the land biodiversity, terrestrial biodiversity. The criteria की है at least 1500 species of plants as endemics, the plants that are living particularly in that region. दूसरा क्राइटेरिया की है हैबिटेट लॉस, should have lost at least 70% of its original habitat। ओरिजिनल एरिया जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूट करता सीगा ईकोसिस्टम नू, बायोम नू, उहदा 70% का लॉस हो चुकिया होना चाहिए। जे दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही हैं दैन इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ग्लोबली 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड
in different parts of the world, California, Mediterranean, इधर Western Ghats, Indo Burma, तो different areas। ਹੁਣ global level ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। The biodiversity hotspots in India। ਮੈਪ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ different ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ मतलब ਸੈਮੀ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੰਡੋ ਬਰਮਾ ਰੀਜਨ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਈਸਟਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੌਟਸਪੌਟ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਸੀਗਾ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੋ ਬਰਮਾ ਹੌਟਸਪੌਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਆਰ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੌਟਸਪੌਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਡਾਲੈਂਡ ਹੌਟਸਪੌਟ। ਪੂਰਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਨਾਟ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਸੁੰਡਾਲੈਂਡ hotspot। Western Ghats and Sri Lanka, Eastern Himalayas part of Indo-Burma, Nicobar Islands part of Sundaland hotspot। ਤਾਂ ਇਹ 3 hotspots of India ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵੁਡ ਹੈਵ ਇੰਜੋਇਡ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।